Dear students, last question of exercise 4B, question number 25. Find the value of sine of 2 sine inverse minus 4 upon 5. And second question, sine of 2 cos inverse minus 3 upon 5. In this question, sine of sine inverse. If sine of sine inverse, then we can find out the value of sine inverse. It will be always x if it lies between minus pi by 2 to plus pi by 2. But in this question, it is not sine of sine inverse. It is 2 sine inverse. So a equal to sine of 2 sine inverse minus 4 by 5. If we convert 2 sine inverse minus 4 by 5 into the term of only sine inverse, then we can find out the value of sine inverse. Again, we know that 2 sine inverse x is equal to sine inverse 2x into 1 minus under root 1 minus x square. Now apply this sine of sine inverse, 2 sine inverse. In the place of 2 sine inverse, we can write it sine inverse 2 into value of x is minus 4 by 5 under root 1 minus is x square. Square of minus 4 by 5 will be 16 upon 25. And when we solve it, simplify it, when we get 25 minus 16 means 9, and upon 25 under root 9 upon 25 will be 3 upon 5. So sine of sine inverse 2 into minus 4 minus 8 upon 5 into 3 upon 5. Now sine of sine inverse minus 24 upon 25. Since minus 24 upon 25 lies between minus 1 to plus 1. Since sine of sine inverse x is equal to x when x belongs to minus 1, closed interval between minus 1 to 1. And minus 24 upon 25 lies between minus 1 to 1. So answer will be minus 24 upon 25. Second question, sine 2 cos inverse minus 3 by 5. First thing, trigonometric function is sine and inverse function is cos inverse. But if we change cos inverse into sine inverse, then sine of sine inverse is applied. But it is not only sine inverse cos inverse, it is also 2 cos inverse. Then 2 cos inverse, and third thing minus 3 by 5. Then first we resolve cos inverse minus x. Since cos inverse minus x equal to pi minus cos inverse x, so we can write it cos inverse 2 into a cos inverse minus 3 by 5 को हमने लिखा pi minus cos inverse 3 upon 5. Now multiply by 2, we get sine of 2 pi minus 2 cos inverse 3 upon 5. अब यहाँ पर क्या बन गया फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, साइन 360 माइनस थीटा. थीटा के प्लेस पे 2 cos इनवर्स 3 by 5. सिंस साइन 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. सो अब हम इसको नोट कर सकते हैं माइनस साइन 2 cos इनवर्स 3 upon 5. तो 2 पाई माइनस थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला अप्लाई किया, जिसके अगेंस्ट हमें मिला माइनस साइन 2 cos इनवर्स 3 upon 5. लेकिन 2 अभी भी नहीं हटा, 2 अभी भी है. अब हम जानते हैं, वी नो दैट 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1. नाउ वी अप्लाई 2 cos इनवर्स 3 by 5 replaced by cos inverse 2x square minus 1. So minus sine into cos inverse 2 into x is 3 by 5. Then the square of it will be 9 upon 25 minus 1. Now we simplify it. Then minus sine cos inverse 2 into 9 18. LCM लिया minus 25 upon 25. So we get minus sine cos inverse minus 7 upon 25. Again we get cos inverse x. Now we know that cos inverse minus x is equal to pi minus cos inverse x. तो हम इसको पॉजिटिव करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन
पाई माइनस cos इनवर्स 7/25। और सिंस साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, फिर हमने पाई को सेपरेट किया फार्मूला लगा के ट्रिग्नोमेट्रिक माने साइन थीटा के लिए साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। सो माइनस साइन और थीटा के प्लेस पर है cos इनवर्स 7/25। नाउ वी गेट माइनस साइन इनवर्स cos inverse 7/25. This trigonometric function is sine and this is inverse function is cos inverse. So we can convert, and we know that we can convert cos inverse into sine inverse. So now we convert, since cos inverse x is equal to sine inverse under root 1 minus x square. So convert cos inverse 7/25 into sine inverse under root 1 minus x square. Now minus sine into under bracket sine inverse 1 minus value of x is 7/25 and square of 7/25 will be 49/625. तो साइन इनवर्स एलसीएम लिया साइन माइनस साइन इन द ब्रैकेट साइन इनवर्स अंडर रूट 625 माइनस 49/625 और 625 माइनस 49 576 होता 576 which is square of 24 and 625 is square of 25. Now we get minus sign of sin inverse 24/25. Since sin of sin inverse equal to x when x lies between -1 to +1 and 24/25 is clear. It is clear that 24/25 lies between -1 to +1. So answer will be -24/25. अब कुछ क्वेश्चन तुम्हारी बुक के बाहर के उठाया हूं कॉम्पिटिटिव मूड में कि कई बार पूछा जाता है साइन इनवर्स साइन टेन। हम कह रहे हैं एक्स को लाइज करना चाहिए किसके बीच में -1 to +1 के बीच में। यहां साइन इनवर्स साइन ऑफ साइन इनवर्स था, ये क्या है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की विशेषता क्या है कि साइन इनवर्स का डोमेन तो हर समय क्या रहेगा, साइन इनवर्स की जो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है वो उसकी वैल्यू हमेशा -π/2 to +π/2 रहेगी साइन के लिए चाहे। लेकिन साइन एक्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन x lies between -∞ to +∞, and this value is given in the term of radian sin inverse sin 10। अब हम पाई की बात करते हैं तो पाई 180 होता है और पाई की वैल्यू 3.14 भी होती है। तो साइन इनवर्स साइन 10 की वैल्यू वी नो दैट साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग टू -π/2 to +π/2। -π/2 to +π/2 मैंने 3.14 का हाफ कर लो तो 1.57 करीब आएगा, ठीक है 1.57 के आसपास आएगा। तो ये वैल्यू तो 10 है, 1.57 के बीच में कहीं आ ही नहीं रही, -1.57 to +1.57। बट 10 रेडियंस डज नॉट लाइज इन दिस इंटरवल, इट लाइज बिटवीन 3 into 3.14 9.42 to 7π/2। ये किस इंटरवल में है 10 इज फाउंड इन 3π to 7π/2 10.99। 7π/2 की वैल्यू कितनी होगी 10.99। हेंस रेडियन हेंस बाय ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x। इसीलिए मैंने ग्राफ पढ़ाया था कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x व्हेन लाइन इज situated when x is situated between -π/2 to +π/2 then y is equal to x। when x lies between π/2 to 3π/2 then y is equal to pi minus x। y means sin of sin inverse x, sin inverse of sin x, sin inverse of sin x lies between x minus 2π और when it lies between 5π/2 to 7π/2
when x lies between 5 pi by 2 to 7 pi by 2 or 3 pi by 2 to 7 pi by 2 or 3 pi to 5 pi by 2। तो यहाँ कितना है 7 pi by 2 और 3 pi के बीच लाइज कर रहा है, तो 10 रेडियन की सिचुएशन ये बन रही है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो किस लाइन पे आ रहा है, y इज इक्वल टू 3 पाई माइनस एक्स। इट मीन्स वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 लाइज इज इक्वल टू 3 पाई माइनस एक्स एंड वैल्यू ऑफ x इज 10, so sin inverse of sin 10 equal to 3 pi minus 10. If we substitute value 9.42 minus 10, then we get minus 0.58, which lies between minus 1 to plus 1, which lies between minus 1 to plus 1। हमारा मूल मकसद क्या है कि जो डोमेन है, किसका डोमेन, साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स का डोमेन है -1 टू +1 और रेंज है -π/2 टू +π/2। तो जो रेंज है ये पूरे ग्राफ देख रहे हो किसके बीच में है, ये लाइन को हम कहते हैं y इज इक्वल टू +π/2 और ये हो जाती है y इक्वल टू -π/2। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x की रेंज π/2 टू -π/2 है, तो किसी भी इंटरवल में रहे आंसर क्या होगा, बिटवीन -π/2 टू +π/2 और ये आंसर बिटवीन -π/2 टू +π/2 है। तो हम वही कोशिश करते हैं। सेकंड, साइन इनवर्स ऑफ साइन 5। अब यहां हमें देखना साइन इनवर्स ऑफ साइन 5, तो 5 लाइज पाई की वैल्यू 3.14, 2 पाई की वैल्यू 6.28, तो किसके बीच में लाइज कर रहा है, पाई की 3.14 और 2 पाई की 6, और पाई और 2 पाई के बीच में क्या पड़ेगा 3π/2, तो 3π/2 की हो जाएगी लगभग माने 4.5 से एबव होगी। तो ये किसके बीच में, 5 लाइज बिटवीन जस्ट नॉट लाइज बिटवीन -π/2 टू पाई, इट लाइज बिटवीन 3π/2 टू 2 पाई। अब 3π/2 और 2 पाई के बीच कौन सी स्ट्रेट लाइन आ रही, y इक्वल टू x माइनस 2 पाई। कौन सा लाइन आ रही है स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू x माइनस 2 पाई एंड x इज द, सो साइन इनवर्स ऑफ साइन x is equal to x minus 2 pi when x lies between 3π/2 to 2 pi. We have given that x equal to 5, so sin inverse sin 5 equal to 5 minus 2 pi, ये आंसर हो गया। C cos inverse of cos 10, माने cos 10 रेडियन दिया है। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 10 रेडियन किसके बीच में आता है, इसके पहले भी निकाला था, 10 रेडियन हमारा आता है, बट 10 रेडियन लाइज बिटवीन, यहां इसका जो डोमेन है ये किसके बीच में, 0 इज लेस देन आर सेम टू x एंड x इज लेस देन आर सेम टू पाई। ये दिख रहा है y इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू पाई, तो ये किसके बीच में रहेगा, 0 और पाई के बीच में ही मूव करेगा। बट 10 रेडियंस लाइज बिटवीन, ये कब रहती है, जब 0 और पाई के बीच में रहेगा, तो ये x होता है cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल टू x। लेकिन ये 10 रेडियंस है और 10 रेडियंस लाइज बिटवीन 3 पाई टू 7 π/2, और यदि यहाँ ध्यान से देखो तो ये cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ है, तो इसमें ये 3 पाई हो गया, ये 4 पाई हो गया, किसके बीच में लाइज कर रहा, 3 पाई टू 7 π/2, तो माने 3 पाई ये यहाँ से 3 पाई टू 7 π/2, तो ये किस स्ट्रेट लाइन पे होगा, y इज इक्वल टू 4 पाई माइनस x। इट मीन्स cos इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू 4 पाई माइनस x व्हेन x लाइज बिटवीन 3 पाई टू 7 π/2 एंड x इज इक्वल टू 10, सो cos इनवर्स cos 10 इक्वल टू 4 पाई माइनस 10। एंड लास्ट डी क्वेश्चन जो हमारा था, tan इनवर्स ऑफ 10 माइनस 6। We have given that tan inverse of 10 minus 6 radian. Since minus 6 radian lies between, minus 6 means 2 pi, तो क्या हो जाएगा 6.28 होता है, तो 2 pi तो हो गया, 2 pi के पहले क्या आता है 3π/2, तो -6 lies between 3π/2 to
2 पाई माइनस 3 पाई बाई 2 टू माइनस 2 पाई इन द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स tan x। अब ग्राफ ऑफ tan इनवर्स tan x देख लो, ये पाई बाई माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 y इक्वल टू x होता है, माइनस पाई बाई 2 टू प्लस माइनस पाई y इक्वल टू x प्लस पाई होता है। और जैसे ही हम आते हैं यहाँ पर किसके लिए, ये था हमारा माइनस पाई, ये माइनस 3 पाई बाई 2 तो माइनस 3 पाई बाई 2 टू माइनस 5 पाई बाई 2 के लिए ये ग्राफ मिलता है। क्या आपने को निकालना माइनस 6 के लिए, तो माइनस 6 किसके बीच में लाइज करता है, 3 पाई बाई 2 टू माइनस 2 पाई, तो इसके लिए x प्लस 2 पाई हो गया, y इज इक्वल टू x प्लस 2 पाई, tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू x प्लस 2 पाई, और x की वैल्यू कितनी है माइनस 6, तो माइनस 6 प्लस 2 पाई, tan ऑफ tan इनवर्स माइनस 6 विल भी माइनस 6 प्लस 2 पाई। एक और क्वेश्चन मैंने उठाया था, अच्छा क्वेश्चन लगा, सिंप्लीफाई फॉलोइंग साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट 2 फॉर ऑल पाई बाई 4 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन 5 पाई बाई 4। साइन इनवर्स 1 by root 2 sin x plus 1 by root 2 cos x. Now we can write it sin inverse of sin x into 1 by root 2 in the term of cos pi by 4 plus 1 by root 2 in sin pi by 4 into cos x. Now we get formula of sin x plus pi by 4, sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta is the formula of sin alpha plus beta. Now we get sin inverse of sin x plus pi by 4. अब x plus pi by 4 के लिए sin inverse of sin x plus y by 4, तो sin inverse of sin x क्या होगा, इसके लिए इन्होंने कंडीशन दे रखी है, since pi by 4 is less than x is less than 5 pi by 4, तो हमें चाहिए x plus pi by 4 की कंडीशन कहाँ आएगी, किनके बीच में आएगी, तो हमने क्या किया, pi by 4 दोनों साइड में जोड़ दिया, पूरे इन इक्वेशन में pi by 4 को ऐड कर दिया, तो pi by 4 प्लस pi by 4 क्या हो गया, pi by 2, सेंटर में आ गया x प्लस pi by 4 जो हमें निकालना था, और 5 pi by 4 प्लस pi by 4, तो 6 pi by 4 means 3 pi by 2. It means x plus pi by 4 lies between pi by 2 to 3 pi by 2. अब आ जाओ साइन इनवर्स ऑफ साइन x में, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x में कितने के बीच में, pi by 2 to 3 pi by 2, pi by 2 ये आपका हुआ pi by 2 to 3 pi by 2, यहां से यहां तक में कौन सी लाइन आ रही है, ये लाइन है y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, तो when pi by 2 when x lies between pi by 2 to 3 pi by 2, sin inverse of sin x equal to pi minus x, and value of x is x plus pi by 4, so pi minus sin inverse of sin x plus pi by 4 को हम लिख सकते हैं pi minus x plus pi by 4, सिंप्लीफाई किया pi minus pi by 4 तो मिल गया 3 pi by 4 minus x। इस तरह से बी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम सिंप्लीफिकेशन के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए करेंगे कि अभी तक हमने क्या किया, फार्मूलों का साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ऐसे फार्मूलों को इस्तेमाल किया। अब हम सिंप्लीफाई करके उसको साइड में लाएंगे, उसके संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना कि उसको और साइड में हम क्या नोट कर सकते हैं, किसी भी उस मैंने इनवर्स फंक्शन को एक्सप्रेशन को कितना सॉर्ट कर सकते हैं और साइड में आने पर वो क्या होगा, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक।